Actually, I feel, a lot of superficial changes in the social norms and attitudes of the society towards women from the 70s to now. And I think that, and some of them are very positive because they are, you see many more women in different fields. It's a very positive outcome, and the changes that I'm addressing and that I'm talking about are internal, and they have to do with the relationships that a woman faces in her private life with her mates, with her family. And I think that although there inroads have been made in that direction, and I'm sure that the external changes will impact the internal ones as time goes on, but I think that because India tends to believe in evolution rather than revolution, that I think that it might take far longer than if women took on the role of changing their lives from within themselves. So I think that that is a change that I would still like to happen, because I know a lot of young people who, although they may be in the workforce, they are not, they do not take the liberties that I feel that frankly, that they're heir to as co-equal with men in society. So I think that the burden of this falls upon the individual girl, woman, child. And that can only really come about with exposure and education, and given a social milieu and an environment in which she is allowed to be free, and in which, I think more importantly, she takes that freedom, because this freedom is not going to be handed to her on a platter. She's going to, it's something she's going to have to take, demand. Well, I think the message that I want to give is that women have a journey to make, just like every human being has a journey to make. And that journey is as much in the external world as it is in the internal world. I think that I would say that it's more in the internal world than it is in the external world, because those two have to go hand in hand. And the journey is towards individuation, towards a search for oneself, everything that one is, not outside of all the roles that we have been given. So this journey is the journey that needs to be undertaken if there's going to be fulfillment for the woman and the male in society. I think that if the woman makes the journey, and it's as incumbent upon the man to take this journey as it is upon the woman, it will lead to a happier society, happier relationships which produce a happier society. मैंने बताया तो कहने लगी, हर समझदार औरत को एक ना एक दिन ये भुगतना पड़ता है, जरूर कामयाबी समझने लगी है। कामयाब क्या समझने लगी है? यही कि दिमागदार इंसान होने के लिए औरत को किल्ला रहना पड़ता है। उसे किसी और के लिए छोड़ा हो, ऐसी बात तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है तो हो जाएगा, और ढूंढ लोगी किसी को? शायद हाँ या ना, कुछ पक्का नहीं कह सकती। फिलहाल तो आराम चाहिए मुझे। तेरे लिए किसी दूसरे मर्द का विचार आना ना कोई हर्ष की बात नहीं है। मेरे मन में कोई विचार नहीं मामा, बहुत उलझन है दिमाग में। तुम्हें डैडी से प्यार है? हेलो, हाय, मैंने उसके बच्चे नहीं जने, हमारा घर है नहीं, साथ साथ रहते हैं हम, नहीं रहते? अब इसमें प्यार से क्या लेना देना? प्यार है। परिभाषाएं तोड़कर पट्टे बदलना, अपने को फिर से पहचानना, इसमें कितना दर्द होता है, तुम क्या समझोगी? देखो, एक कुशन मत मस लो, कल ही ड्राई क्लीन कराया है।
बैठने ना दो, कुर्सियां खराब हो जाएंगी। लगेगा जैसे उन पर कोई बैठ गया है? तुम्हारी ये नेबर्स आएंगी, क्या कहेंगी? देखी, इनके यहाँ तो लोग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। एक दूसरे को समझ ले तो एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे, या फिर वही नफरत करने लगेंगे एक दूसरे से। धूल, मेज, कुर्सी, चाय, बातें करती हूँ, हाथ में पोछा लिए मैं ठीक उसी तरह वहां खड़ी रह सकती हूँ। मैं अपनी माँ में बदल सकती हूँ, इसीलिए मैं उससे नफरत करती हूँ। रहम आता है उसने अपने लिए कोई रास्ता या मौका खुला नहीं छोड़ा। तरस खाती हूँ अपने आप पर, मैंने अपने लिए जरूरत से ज्यादा रास्ते खोल रखे हैं। हालांकि वो यहां से जा चुकी है, फिर भी वो है, यही है। हिलाने लगा। हाँ, बिल्कुल आदमी बन गया था। मुझे हिलाकर बोलने लगा, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। मैं डरकर भागने लगी तो बोला, तुम उस आदमी के साथ तो सोती हो ना, फिर मेरे साथ क्यों नहीं? मैं तुम्हारा प्रेमी बनूंगा। वो डैडी ने कहानियां सुनाई थी ना, अन्ना कैरेनिना और मैडम बोवरी मर गई क्योंकि उनके प्रेमी होते थे। शायद इसीलिए मुझे सपना आया होगा। फिर भी मुझे डर लग रहा है कामी, मुझे अपने पास सुला लो। पता नहीं ये डैडी क्यों मुझे खराब खराब कहानी सुनाते हैं। शिव अच्छी अच्छी कहानी सुनाता है। स्वर्ग की अप्सराएं के आदमियों से प्यार करती हैं। देवता ठंडे मैदानों में झाड़ियों में औरतों से प्यार करते हैं। मुझे शिव की कहानी अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। हल्का हल्का खुला खुला। ले फिर शीशे के सामने। आईना देखने में क्या है डैडी? लड़कियां सिर्फ आईना देखा करती हैं और कुछ नहीं करती, इसीलिए दुनिया का नाश हो गया। याद है मैंने तुम्हें ट्राई की हेलेन और क्लेपेट्रो की कहानी सुनाई थी? वो हमेशा आईना देखा करती थी, इसी से देखा कितने सारे लोग मारे गए। क्लेयोपेट्रा भी तो मर गई डैडी। हाँ, क्योंकि उसका प्रेम भी था। उसे अपने देश का ख्याल रखना चाहिए था, ना कि अपने चेहरे का। लड़के अपने को आईने में नहीं देखते डैडी। हाँ, लेकिन लड़के अपने को अपने चेहरे से नहीं आंकते। लड़के अपने को काहे से आंकते डैडी? ओ शट अप। नो क्यों होता है? नो पहाड़ों पर एक छोटा सा कॉटेज लूंगी, खुद सब्जियां उगाऊंगी, फल भी होंगे, 2 तिब्बती पिल्ले पालूंगी और एक श्यामी बिल्ली। सवेरे सवेरे उठकर गरम गरम कॉफी और फिर सूरज उगने से पहले पैदल घूमना। तब शायद मैं भी तुम्हारे यहाँ आऊंगा। ये तुम्हारे पैसे, वो पिछले महीने दूध वाले को पेमेंट की थी ना तुमने?
साथ लॉटरी निकल आई मेरी है? फिर तो ना 3 कमरे होंगे, बैठक में फायरप्लेस, एक छोटा सा स्टडी, उधर भी फायरप्लेस, पैसे रहे ना तो एक ग्लेज्ड वरांडा जहां पर धूप तो लगेगी लेकिन हवा नहीं लगेगी। गर्मियों में जगह दोगी मुझे अपने यहाँ? सोचूंगी। मैं फायर प्लेस के लिए जंगल से लकड़ियां काट लाऊंगा। उसके लिए तो नौकर होगा। अच्छा, देखा, तुमने उसे छोड़ा ना होता तो पहाड़ों में भी तुम्हारा अपना घर होता। ये सब कुछ बड़ी दौलत छोड़ के मरा उसका बाप। हाँ, तो मेरा कचूमर निकालने के लिए वो शराबी भी साथ में आता कि नहीं? नहीं नहीं, इससे अच्छा तो मैं बेघर ही भली। पहले से खराब हाल है। वाह जी, बिल्कुल नहीं, बल्कि अब तो खुश हो जाती है। इसी पिछले संडे को उसी चट्टान पर बैठे अंग्रेजी की नर्सरी गा रही थी, बताओ। कौन सी? अरे बहुत सारी है, अब तो मुझे जवानी याद होगी है। Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. लेकिन सुनो, इससे आगे कौन सी आती है? हाँ हाँ, वो वाली ऐसे है। It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see the land that stood. Against the rules, against the rules, against the rules. लगता है कोई एल्बम देख रहा था। ये रही मैं, कहानी में फर्स्ट प्राइज ले रही हूँ। तब सभी कहते थे कुछ बनेगी कुछ बनेगी, और मैं भी सोचती थी राइटर बनूंगी, खूब मशहूर अपने अंकल की तरह। तब वो लोग मुझ पर हंसते, कहते बखत काटने की बात है, बड़ी होगी, सियानी होगी, शादी होगी, बाल बच्चे होंगे, घर संभाल लेगी। घर? मैंने उसे छोड़ा क्यों? ये सवाल मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे नाटक घर में दर्शक अपने एक्टर को घूरता है। गलत सवाल। मैंने उसे छोड़ा नहीं, और शुरुआत में जाना होगा। मैंने उससे शादी क्यों की? तब मैं 24 साल की थी। मैंने जिंदगी देखी थी, 4 बार प्रेम कर चुकी थी। एक को छोड़कर दूसरे के पास जाने में कोई झिझक नहीं थी। कभी ऐसा भी हुआ, एक ही समय में मेरे 2 प्रेमी थे। जो कमी एक से पूरी नहीं होती वो दूसरा करता। लेकिन फिर शर्म करो, ये कैसे किया तुमने? औरतें हमेशा एक गमनी होती हैं, मोनोगैमस। जिंदगी को चीर कर उसका अर्थ मैं नहीं ढूंढ रही थी। तब सिर्फ जिंदगी जी रही थी, बच्चे की तरह बिना किसी शक सवाल के खेल रही थी मैं। बड़ी हो, तुम सयानी कब होगी अब? बड़ी सयानी? क्या मतलब है इसका? खेलना बंद करके ऐसे जीना जैसे सिर्फ समय काट रहे हो। गलत, बैड गर्ल। छी, मैं खराब लड़की थी। जरा शांति रखो, देखो धरती पर पैर रखो। पेड़ इतना बड़ा हो जाता है, फल देता है, क्योंकि एक जगह टिका रहता है, अपने को गाड़ता है, जमीन में धंसता है, धरती में अपना घर करता है, तब जाकर उठता है सूरज की तरफ, तब जाकर फल आते हैं। मैं भी उड़ना चाहती हूँ, पंछी की तरह, यहाँ वहाँ, आकाश आकाश। हाँ, लेकिन बेचारी औरतें चिड़िया नहीं। हाँ, तब मैं बेतरह थकी थी, सिक्योरिटी खोज रही थी, फिजिकल सिक्योरिटी। प्यार तो
सिर्फ एक आदर्श है, आइडियल, सिर्फ दिमागी। ये सोचती थी। प्यार सिर्फ वासना है, हविश, इस पर काबू पाना ही चाहिए। मेरी बाहरी और जज्बाती जरूरतों का इंतजाम हो जाए तो मैं अपने आप को पूरी तरह अपने काम में लगा दूं। आत्मा और शरीर दोनों से। मेरा लिखना पढ़ना। मुरली तेज है, मुझसे ज्यादा जानता है, वो मेरे काम में मेरी मदद करेगा। इसीलिए जब मुरली ने कहा चलो हम शादी कर लें, मैंने कहा चलो। मुरली के लिए तो प्यार ही सब कुछ था। अपने को मिटाकर प्यार करता, कभी किसी चीज में मुझे टोकता ही नहीं। लगा जैसे अकेली रहती हूँ अपने ही साथ। ये बिल्कुल वैसा था जैसे आप किसी संत या प्रेत के साथ रह रहे हो जो आपको कभी कुछ कहता ही नहीं। एक सेब है यहाँ, सिर्फ एक सेब। इस प्लेट में एक ही सेब है, कमरे में एक ही सेब है, पूरे घर में एक ही सेब है, शायद बाजार में एक ही सेब है। इस मौसम का आखिरी सेब है ये, इसे मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी इसे, समझे तुम? पूरा का पूरा तुम्हारे वास्ते ही है, पूरा खा जाओ। तो ये आलम था, पता है? सारा दूध वो हरामी का पिल्ला नौकर पी गया। रोज चीनी चुराता है। कल रात मैंने 20 चम्मच चीनी गिनकर छोड़ी थी यहाँ। 11 चम्मच चीनी हमने इस्तेमाल की, 9 चम्मच चीनी कहाँ गई बताइए? हरामजादा, समझता है बाप का माल है, पेड़ पर उगते हैं पैसे। और कुतिया झाड़ू वाली, कितनी बार कहा कि सवेरे आ जाया करो, सुबह सुबह घर साफ दिखना चाहिए, लेकिन वो बंदी एक बार भी 11 से पहले आकर नहीं दी। सारा घर कबूतर खाना बना रहता है। मेहरबानी करके अखबार मत फैलाओ हर जगह। मैं तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हूँ, समझे? ठीक है ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, पिक्चर देखने चलते हैं, तुम्हारा मूड बदल जाएगा। पिक्चर पता है कितने खर्च होंगे? 10 रुपए स्कूटर के, फिर टिकटों के 10 रुपए। कम वाली में तो तुम बैठोगे नहीं, तुम्हारी नाक जो नीचे हो जाएगी। नो, अरे अभी कुछ पैसे हैं ना अपने पास। अभी है, आगे क्या करूंगी? वो भी मैं ही सोचूं। कल जब बच्चे होंगे तब उनकी पढ़ाई। आगे ही सारा पैसा तुम्हारी बाप की दवाइयों में जाता है। कभी पैसा बचाना है कि नहीं? कभी तो सब पर अपनी छत होगी कि नहीं? ठीक है बाबा, पर अभी पिक्चर देखने चलते हैं, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। नहीं, तुम्हें कितना पसंद था? रुकने दो। औरत मर्द से ज्यादा आदिम है। मर्द कुदरत के इतना करीब नहीं जितने की औरत है। वो उस ताकत का हिस्सा है जो पैदा करती है, रचती है, बनाती है। मर्द के लिए बंधन नहीं होता, इसलिए औरत से आगे हो गया, बुद्धि में, विवेक में। अच्छा, तुम सचमुच ये मानते हो? हाँ, अब शरीर से ही देख लो, औरत जल्दी जवान होती है, जल्दी बुढ़ाती है। मतलब यूं ही प्यारी सी चीज है, सुंदर है। गड़बड़ होती है तब जब औरत मर्द का नकल करती है। नहीं नहीं, मर्दों की नकल नहीं करनी चाहिए, औरतों को बुद्धि नहीं लेनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। अभी कह रहे थे बुद्धि सिर्फ मर्दों की बपौती है। उनकी सोचने की ताकत ज्यादा है और औरतों की महसूस करने की। तो मर्द सोचते रहे और औरतें महसूसती रहे। व्यवहार में ही देखो, औरत अपने मर्द और बच्चों से कितना प्यार करती है, आदमी से कहीं ज्यादा सहती है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, बंगाल में उसे बहू माँ कहा जाता है। वो अपने मर्द की दुल्हन होती है और साथ ही उसके बच्चे की माँ, और इसलिए उसके वंश की भी माँ कहलाती है। अरे औरत की मंजिल मर्द से बहुत ऊंची होती है, और इस अर्थ में कभी कभी मेरा मन औरत होने को होता है। मुरली, मुझे लगता है तुम्हें मुझसे मायूसी ही मिलेगी। उससे भी ज्यादा डर खुद मुझे अपने आप से मायूस होना पड़ेगा। तुम्हारी देवी की तस्वीर मैं पूरी नहीं कर सकती मुरली। मुझमें बहुत कुछ है जो छोटा है, चिड़चिड़ा है, गंदा है। मैं महज इंसान हूं। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा।
तुम्हें माँ बनना चाहिए, फिर सब। तुम्हें लगता है इससे ठीक होगा? देखो, हमारे यहाँ माना जाता है कि हर आदमी जब जन्म लेता है तो वो जिंदगी से कर्ज लेता है, वो जिंदगी उधार लेता है, और वो कर्ज अदा होता है तब जब वो दुनिया में एक नई जिंदगी पैदा करता है। ग्रेट। मेरी काम्या, मेरी बहू माँ, धरती माँ, देवी माँ। मेरा पीकदान कहाँ धर दिया? मुरली, आज मैं मीरा का भजन सुन रही थी। मीरा में इतनी भक्ति है, इतनी पूजा, अकीदत और प्यार की। मैं भी वैसी बनना चाहती हूँ। हाँ? अरे हर कोई मीरा थोड़े हो सकती है पागल। मीरा बड़ी चीज थी। हर कोई संसार को भुलाकर भगवान को नहीं खोज सकता। अरे मीरा ने तो अपने पति तक को छोड़। मैं भी जोगिन बनूंगी, शरीर को भुला दूंगी। काम्या, काम्या देखो, हम शरीर में रहते हैं। जब मैं तुम्हें चूमता हूं तो तुम्हारे शरीर में कंपन होता है ना? हाँ? देखो, हमें शरीर से भगवान तक पहुंचना चाहिए। और तुम मां बनने वाली, तुम जंगल चली जाओगी तो बच्चे को कौन संभालेगा? मीरा आदमी से प्यार करती थी, आदमी से, हरि नाम से, भगवान के नाम से। लेकिन प्यार ऐसे करती थी जैसे औरत मर्द से, मन और शरीर से। मीरा ने अकेले रहना पसंद किया। जिस पति से प्यार नहीं, उसकी माँ या रखेल बनने से एक ख्याल की प्रेमिका बन गई। मैंने भी अपने अजन्मे बच्चे के खून से अपने कपड़ों पर दाग लगा दिए, लाल जूतों जैसे दाग, और निकल गई। मियाँ को मेरा शरीर चाहिए और बाप को मेरी आत्मा। दोनों मेरा भला चाहते हैं, लेकिन प्यार के बिना। मैं अकेले रहना सीखूंगी, एकांत सीखूंगी। अकेलेपन में जिंदगी हो तो मुर्दा साथ होने से बेहतर है। मुझे बाप का घर भी छोड़ना पड़ेगा। आने वाली सदियों का अकेलापन मेरे सर में चक्कर लगा रहा है। आने वाली सदियों का अकेलापन मेरे सर में चक्कर लगा रहा है। This has been a play which I have looked at it as the gender issue and the issue of justice, where there are 2 points of views. I felt that the morality we world over, and more so in India recently, in few last 1,000 years or so, we have got into double standards. What applies as the morality for a male or for his prestige or goodwill does not apply to a lady or a woman for that matter. We hardly treat them as ladies, though we idealize them as mother images, or rather we blackmail them by that. I felt, having been a student of drama, period of Ibsen and Strindberg, that where Laura of Ibsen has to leave disillusioned from her husband and leaves the house of her husband, probably towards her father's house. Here she is entering the father's house as a relief maybe, but there also she has to face the same male orientation, male superiority by the males as well as the women who have been conditioned in that.
and ultimately she has to leave father's house also. And she says that coming centuries, segregation or loneliness is haunting me. So that loneliness is not of an individual Kamya or a one particular woman, that is of a gender, or so to say the other gender also. Because if a woman is alone, then the man is also alone. And that will take centuries to readjust and find the new rules of the game of being together.